Dear student, now we are going to start very crucial chapter of the electromagnetism, that is called electromagnetic induction. According to IIT JEE, ये chapter बहुत important role play करता है, and we can say that this is the most important and crucial chapter of the whole physics regarding IIT JEE or AIEEE. So first of all, electromagnetic induction में we will discuss about the magnetic flux as well as Gauss law of the magnetism. So what is magnetic flux? Magnetic flux का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं. तो यहां पर हम देखते हैं, सपोज देयर इज अ सरफेस. आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे एक आपको सरफेस विजिबल है और इस सरफेस को पेनिट्रेट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं. तो यहां पर ये लाइंस किसी एंगल पर जा रही हैं. आइए देखते हैं किस टाइप से पेनिट्रेट करती हैं यहां पर. सो दिस इज गिवन, ये आपको मैग्नेटिक लाइंस है जो गिवन सरफेस को पेनिट्रेट करके वापस उसको क्रॉस करके जा रही हैं. इस केस में यहां पर कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा एंड रादर वी कैन से फ्लक्स विल चेंज हियर. तो हमारे लिए क्रूशियल होता है फ्लक्स का चेंज होना. तो यहां पर हम कह सकते हैं फ्लक्स जो होगा जब मैग्नेटिक लाइंस कट करेंगी किसी भी सरफेस को या किसी भी सरफेस को पेनिट्रेट करेंगी. So here in this case we can say, if you can say this is given ds vector, यहां पर एरिया को हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं. रिमेंबर इट, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर वो एरिया वेक्टर होगा. यहां पर मैग्नेटिक लाइंस दैट मींस डायरेक्शन ऑफ बी, और आप एरिया वेक्टर में एंगल देख सकते हैं एंड दैट एंगल इज गिवन हियर थीटा. So we can say flux in this case, and that must be equal to phi equals to vector b dot vector ds, and that will be equals to mod of vector b and then mod of ds vector, that means area vector, that times cos theta. So यहां से ये भी चीज क्लियर हो जाता है, dot product of any two physical quantity that will be always a scalar quantity. So d phi or change in flux, that must be scalar quantity. So in this case now we can say if phi b equals to integral of b dot ds or b into ds cos theta, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करें then you can get again the total value of the flux. That means flux depends on the magnetic field intensity or magnetic line b as well as area vector also and the angle between them also. So here phi b equals to integral of b ds cos theta. Now we can say integral of b dot ds also. That means integral of vector b dot ds vector. Here ds is a vector quantity that is given an area, as well as b we know that is a magnetic field induction or intensity of magnetic field, and definitely that is also a vector quantity. So in this case we can say magnetic flux is a scalar quantity. इस पर्टिकुलर रूल से आपको यह क्लियर हो गया दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज will be always a scalar quantity. And second conclusion जो हमें निकलता है that SI unit of the magnetic flux, SI unit of the magnetic flux that should be Tesla meter square. क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा था यहां पर phi equals to B into A और BA cos theta. So B का यूनिट as we know टेस्ला होता है and एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर and that will be 1 Tesla meter square. This is the unit of magnetic flux. And again one more unit is given for magnetic flux and that is called Weber. And 1 Weber is equivalent to 1 Tesla meter square. So चाहे आप वेबर कहें या टेस्ला मीटर स्क्वायर कहें, both are the equivalent one. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो यहां पर हम कह सकते हैं 1 वेबर. वेबर इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर. एंड वन मोर थिंग हियर, 1 न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ये भी एक इसका यूनिट आप डिफाइन कर सकते हैं फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स. सो वी कैन से 1 टेस्ला इज इक्वलेंट टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. सो अब यहां पर हम मैग्नेटिक इंडक्शन का या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और यूनिट डिफाइन करते हैं एंड दैट इज 1 टेस्ला एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो टेस्ला के साथ हम वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट कैन बी द आल्सो वन ऑफ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. तो अब आइए हम देखते हैं इससे और क्या कंक्लूजन निकलता है. द थर्ड कंक्लूजन दैट इन द स्पेशल केस the vector b is given uniform over a plane surface with the total area vector s.
तो यहां पर वेक्टर बी मस्ट बी यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म इन जनरल केसेस। तो हियर वी कैन से, अब आप देख सकते हैं अगर आपको ये सरफेस गिवन है और इस सरफेस से किसी एंगल पर मैग्नेटिक लाइंस कट करके निकल रही हैं, आइए देखते हैं किस टाइप से होगा। देन वी कैन से दैट विल बी द डॉट प्रोडक्ट एंड वी हैव टू कंसीडर द एंगल बिटवीन दीज टू बी एज वेल एज एरिया वेक्टर। तो यहां पर आप देख सकते हैं हियर द मैग्नेटिक लाइंस आर कटिंग द सरफेस, मैग्नेटिक लाइंस किसी पर्टिकुलर एंगल पर विद एरिया पर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कट कर रही हैं उस पर्टिकुलर सरफेस को एट द एंगल थीटा। सो फाई बी इक्वल टू इन दैट केस इक्वल टू बी एस कॉस थीटा। आइए देखते हैं किस टाइप से ये हो रहा है। यू कैन से दिस इज गिवन द डायरेक्शन ऑफ बी, ये आपको बी का डायरेक्शन गिवन है, एज वेल एज दिस इज गिवन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन गिवन है। तो दोनों के बीच में आप एंगल देख सकते हैं, दैट एंगल इज गिवन थीटा। हियर वी आर टेकिंग सिंपली फाई बी इक्वल टू बी एस कॉस थीटा, दैट विल बी द फ्लक्स इन दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एज वेल एज बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर इज गिवन थीटा। So now in this case, अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। नाउ द एंगल थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक लाइंस इज गिवन 0। यहां पर आप कह सकते हैं जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इस पर्टिकुलर केस में यहां पर देखिए आप एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों पैरेलल हो रहे हैं। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, दैट मींस थीटा इज 0 एंड वी ऑल नो दैट cos 0 विल बी इक्वल टू 1। सो हियर फाई बी इक्वल टू बी एस cos 0 दैट इज 1, सो फाई बी इक्वल टू बी एस। फाइनली यहां पर इस केस में जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू बी इंटू एस। अब हम देखते हैं इसका b इंटू एस, कैसे b इंटू एस करते हैं। सो फाई बी इक्वल टू बी एस कॉस थीटा, जो जनरल रिजल्ट था हमारे पास फ्लक्स के लिए। नाउ वी कैन से b is perpendicular to the surface and we all know that area will be also perpendicular to surface, that means the angle between them, here cos theta is equivalent to 1, which means angle between them theta should be equal to 0 and that means phi b equal to b into s। यहां से आपको फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है and that will be b into s। Now